الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ محترم دوستو، بزرگو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے چہل کاف کو استعمال کرنے کا طریقہ کار۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چہل کاف کا عمل فن عملیات کے اندر ایک مقبول ترین عمل ہے جو پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، غوث سمدانی رحمہ اللہ تعالی سے منقول ہے، اور یہ آپ کے اشعار ہیں۔ تو دوستو، جب آپ چہل کاف کی زکوٰۃ ادا کر لیں تو پھر ذہن کے اندر سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ جو نئے عاملین حضرات ہوتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ جی چہل کاف کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے، کہاں کہاں یہ استعمال ہو سکتا ہے، جادو کے لیے کیسے، جنات کے لیے کیسے۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ اس ٹاپک پر ہماری گفتگو ہوگی اور انشاءاللہ اہم ترین گفتگو ہوگی۔ تو دوستو، جب آپ اس کے عامل بن جائیں تو عامل بننے کے بعد پہلی چیز تو ہے اس کا ورد کتنی بار جاری رکھا جائے۔ تو ورد دوستو، اگر آپ نے کوئی اس کی بڑی زکوٰۃ نکالی ہے، مثال کے طور پر 313 بار والی، 700 بار والی یا 1100 بار والی، تو پھر کم از کم آپ اس کی ایک تسبیح تو ضرور پڑھیں روزانہ کی، تاکہ آپ کا عمل آپ کے قابو میں رہ جائے۔ دوسری بات کہ اس کو آپ کیسے استعمال کر سکتے ہیں، تشخیص کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، اگر مریض آپ کے سامنے موجود ہے، آپ کے پاس آیا ہوا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، 7 بار چہل کاف کو پڑھیں، اول آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں، پھر مریض پر دم کریں، پھر دیکھیں کہ مریض کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اگر مرض بڑھنے لگے، جھٹکے لگنے لگیں، بدن کانپنے لگے، تو سمجھ جائیں کہ اس پر جنات ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر بوجھ آنے لگے، نیند آنے لگے، ٹھیک ہے، یا سر میں درد ہونے لگے، تو پھر مطلب اس پر جادو کے اثرات ہیں۔ اگر کچھ بھی نہ ہو تو پھر بدنی مرض ہے۔ اسی طرح دوستو، آپ ہاتھ پر بھی نشان لگا کر اس کی تشخیص کر سکتے ہیں۔ نشان لگائیں، پھر 7 بار چہل کاف پڑھ کر دم کریں۔ اسی طرح مریض کے کپڑے کے ذریعے بھی آپ تشخیص کر سکتے ہیں۔ جس کپڑے کے اندر مریض نے رات گزاری ہو، وہ کپڑا لے لیں، پہلے اس کپڑے کی آپ نے پیمائش کرنی ہے، جب پیمائش کر لیں پھر 7 بار چہل کاف پڑھ کر اس پر دم کریں، پھر ناپیں۔ کپڑا بڑھتا ہے تو جنات، کم ہوتا ہے تو جادو برابر رہتا ہے تو پھر جسمانی مرض۔ یہ تو ہو گیا دوستو تشخیص کا طریقہ کار۔ اب آگے جنات کا علاج ہم نے کیسے کرنا ہے۔ دوستو، اگر آپ چہل کاف کے ذریعے سے جنات کو حاضر کرنا چاہتے ہیں، ایسا مریض جس کی حاضری ممکن ہو، تو مریض کو بٹھائیں اپنے پاس، اپنا حصار، مریض کا حصار ضرور کریں۔ پھر اس کے بعد دوستو 21 بار چہل کاف کو آپ پڑھیں، با آواز بلند پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اتنی آواز سے پڑھیں کہ جتنی آواز مریض بآسانی سن سکے، اس کے کانوں تک آواز پہنچ سکے۔ 21 بار چہل کاف پڑھ کر اس کے سینے پر پھونک ماریں، دونوں کانوں میں بھی پھونک ماریں اور حکم لگائیں کہ چہل کاف کے موکلات، اس کے جسم میں جادو جنات جو کچھ بھی ہے سب کچھ کو اس میں حاضر کر دو، تو انشاءاللہ 1 بار سے یا 2 بار سے یا 3 بار سے انشاءاللہ حاضری ہو جائے گی۔ یہ تو ہوا حاضری کا طریقہ کار۔ اب اگر ایسا مریض کہ جس کی حاضری ممکن ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا علاج آپ کیسے کریں گے۔ جس کو نیند کے اندر جھٹکے لگتے ہیں یا جنات کے کچھ اثرات رہتے ہیں، تو اس کا تدارک، اس کا علاج آپ کیسے کریں گے۔ تو دوستو 3 چیزیں آپ لیں، ٹھیک ہے، پانی، تیل، نمک، پانی، تیل، نمک، ان تینوں چیزوں کو اپنے سامنے رکھیں اور اول آخر 11 بار درود ابراہیمی یا 7 بار یا 3 بار پڑھیں۔ وہ ان تینوں چیزوں کے اوپر آپ نے دم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اول آخر 3 بار درود ابراہیمی ہو گیا یا 7 بار یا 11 بار، اور درمیان میں آپ نے 70 بار چہل کاف کو پڑھنا ہے، 70 بار، اتنی تعداد آپ رکھیں۔ ان تینوں چیزوں پر آپ دم کر دیں، ٹھیک ہے۔
नमक जो होगा वो मरीज़ पानी के अंदर डाल करके या खाने के अंदर डाल करके उसको इस्तेमाल करेगा, और जो पानी होगा सुबह शाम मरीज़ पिएगा, ठीक है। और रात को सोते वक्त अपने बिस्तर पर कुछ छींटे लगा देगा, ठीक है। और जो तेल होगा वो क्या करेगा, अपने सर पर मालिश करे, दोनों कंधों पर मालिश करे, ठीक है। औरत है तो वो सीने पर भी मालिश करे, ठीक है। तो 21 दिन या 41 दिन तक इस अमल को वो करेंगे, इंशाअल्लाह ताला जिन्नात से छुटकारा हासिल हो जाएगा। साथ ही चेहरे काफ का आप तवीज़ भी बना के दें। वो तवीज़ आपने कैसे बनाना है, शुरू के अंदर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना है, फिर उसके बाद आप 3 बार चेहरे काफ लिखें या 1 बार चेहरे काफ लिखें, और उसके नीचे आपने 15 का नक्श लिखना है, फिर उसके नीचे दरूद शरीफ कम से कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आपने लिख ही देना है। फिर ये तवीज़ मरीज़ को दें गले में डालने के लिए, ठीक है। और एक ही तवीज़ ऐसा बना के दें जो मरीज़ पिए उसी पानी के अंदर डाल करके जिस पर आपने चेहरे काफ को दम किया है। तो इंशाअल्लाह इस इलाज के ज़रिए से जिन्नात से उसको छुटकारा हासिल हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह अगर जादू का मसला हो तो देखें, जहाँ जिन्नात की हाज़िरी होती है वहाँ पर जादू की भी हाज़िरी होती है, ठीक है। जिन्नात की हाज़िरी का मतलब ये होता है कि मरीज़ की हालत बिल्कुल बदल जाती है और मरीज़ अपने से बाहर हो जाता है, रोना, चीखना, चिल्लाना, और जिन बोलता है जिस्म के अंदर जब हाजिर होता है। तो जादू की हाज़िरी कैसे होती है? जादू की हाज़िरी यूँ होती है कि मरीज़ के सर पर, कंधों पर बोझ आ जाता है काफ़ी मिकदार के अंदर, ये जादू की हाज़िरी होती है। और बस औक़ात झटके भी लगने लग जाते हैं और सख्त किस्म की नींद भी उस पर तारी हो जाती है। ये जादू की हाज़िरी की अलामत होती हैं। तो जादू वाले मरीज़ का इलाज आपने कैसा करना है, उसको साथ बिठाएं और 70 बार चेहरे काफ पढ़कर उसके मुंह पर और उसके दोनों कानों में फूंक मारें और उसके सीने पर फूंक मारें। फिर हुक्म लगाएं कि चेहरे काफ के मुकलात इसके जिस्म में जो जादू के असरात हैं उनको हाजिर करें। तो फिर यही कैफियत होगी जो मैंने आपको बताई है। साथ ही दोस्तों 41 बार चेहरे काफ पानी पर दम करके भी आप उसे दे सकते हैं, और मरीज जादू वाला सुबह शाम उस पानी को 21 दिन तक पिए। 21 दिन के 3 कोर्स आपने उसको करवाने हैं, ठीक है। फिर साथ साथ उसको ये हुक्म देना है कि चेहरे काफ को आपने 11 बार सुबह शाम पढ़कर अपने ऊपर दम करना है। ये बात याद रखें कि इसका फ़ायदा उस वक्त पूरा होता है जब आमिल मरीज़ दोनों को चेहरे काफ सही तरीके से पढ़ना आती हो, जो इसके अल्फाज हैं। अगर उसके अंदर कुछ गड़बड़ हो जाए तो फिर उल्टा रुजात का ख़तरा भी इसके अंदर रहता है। तो ये तो हुआ जादू का इलाज। बाकी अगर किसी के पेट के अंदर दर्द हो तो थोड़ा सा नमक ले लें, 7 बार चेहरे काफ पढ़ करके दम करें, फिर उस नमक को वो मरीज़ चाटे। इंशाअल्लाह ताला जो पेट का दर्द होगा उससे उसे शिफा हासिल होगी। इसी तरह दोस्तों अगर आपका कोई जानी दुश्मन है, ठीक है, जिसको कत्ल करना शरअन जायज़ हो, ठीक है, तो उसके लिए आप एक कच्ची ईंट ले लें, कच्ची ईंट, और कच्ची ईंट पर दुश्मन का नाम, उसकी वालदा का नाम लिखें। फिर 70 बार चेहरे काफ पढ़कर उस पर दम करें, फिर उसके ऊपर ज़रबे लगाएं, कोई चाकू की ज़रब हो या कोई लोहे की ज़रब हो, ईंट पर वो लगाए। फिर उस ईंट को आपने कफन देना है, कफन दे करके फिर उस पर नमाज जनाजा पढ़ना है, उसी का तसव्वुर करके अपने दुश्मन का। फिर उस ईंट को आपने तालाब में या दरिया में फेंक देना है। जैसे ही वो घुलेगी इंशाअल्लाह आपका दुश्मन भी घुल जाएगा। इसी तरह दोस्तों आपको कोई सख्त मुकदमा दरपेश है, आप हाकिम के पास या जज के सामने जा रहे हैं, तो जाने से कबल 41 बार चेहरे काफ पढ़ करके अपने ऊपर दम कर दें। इंशाअल्लाह वो हाकिम आप पर मेहरबान होगा। इसी तरह दोस्तों आप हुब के लिए चेहरे काफ को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके 3 तवीज़ बनाएं। तीनों तवीज़ों में आपने सिर्फ चेहरे काफ को ही लिखना है, ठीक है। जब चेहरे काफ मुकम्मल लिख लें तो फिर नीचे नाम लिखना है, अल हुब फुला इब्ने फुला अला हुब फुला इब्ने फुला, ठीक है। जायज़ हुब के लिए, नाजायज़ के लिए नहीं, जायज़ हुब के लिए, ठीक है। 3 तवीज़ बन गए। एक तवीज़ दरख्त पर लटकाने के लिए देना है, और एक तवीज़ बाजू पर बांधने के लिए, और एक तवीज़ किसी वज़नी चीज़ के नीचे दबाने के लिए। इंशाअल्लाह ताला जो महबूब होगा वो ताबी हो जाएगा। ये जायज़ मकसद के लिए, मिसाल के तौर पर
औलाद वालिदैन की नाफरमान हो, ठीक है ना, उनको मुती बनाने के लिए मियाँ बीवी के दरमियान, बहन भाइयों के दरमियान, बाकी जो इश्क मशूकी होती है, इश्क मजाजी, उसके लिए इस अमल को यूज़ नहीं करना है, मगर ना उल्टा नुकसान होगा। इसी तरह दोस्तों, अगर कोई शख्स भाग गया हो, आप ये चाहते हैं कि मैं उसको वापस बुलाऊं, तो चहले काफ लिखें एक बार, नीचे उसका नाम, उसकी वालदा का नाम लिखें, फिर उस तवीज़ को साइकिल के व्हील में या चरखे में बांध करके घुमाएं, 7 सीधे चक्कर दें, 7 उल्टे चक्कर दें, इंशाअल्लाह ताला वो वापस आ जाएगा। इसी तरह कोई शख्स गायब है, उसके हाल अहवाल का आपको कुछ भी पता नहीं है, तो 3 बार चहले काफ लिखें, ठीक है। फिर रात को सोने से कबल वो चहले काफ वाला नक्श तकिए के नीचे दबा के रखें, ख्वाब के अंदर इंशाअल्लाह ताला उसके तमाम अहवाल का पता चल जाएगा। इसी तरह कोई बीमारी है, कोई बवासीर है या कोई और बीमारी है, सर का दर्द है, तो उसके लिए भी 7 बार चहले काफ पढ़कर आप दम कर सकते हैं। वैसे उमूमन कोई भी मर्ज हो जिस्मानी मर्ज, तो 41 बार चहले काफ पानी पर दम करके भी आप दे सकते हैं। अगर पानी आबे ज़मज़म का हो तो फिर ये नूरुन अला नूर है। तो इंशाअल्लाह ये चंद खासियत मैंने चहले काफ की बताई हैं, इसके इस्तेमाल के तरीक़ेकार बताए हैं। बाकी जो आमिल होता है उसको पता होता है कि कहाँ कैसे इसको इस्तेमाल करना है। ये वीडियो उन आमिलीन के लिए है जो बार पूछते हैं कि जी हमने चहले काफ को कैसे इस्तेमाल करना है। तो आखिर में इतनी बात को ज़रूर समझ लें कि हर जायज़ मकसद में हर जायज़ काम के अंदर आप चहले काफ के अमल को इस्तेमाल कर सकते हैं। जादू जिन्नात हो या जादू जिन्नात के अलावा कोई भी आपका मकसद हो, सिर्फ तसव्वुर मजबूत होना चाहिए और इसकी ज़कात भी आपने कोई ना कोई अदा की हुई हो, ठीक है। बाकी हांडी का अमल भी इसके साथ होता है, ठीक है। और भी काफ़ी अमाल बड़े बड़े होते हैं जिनसे आमिलीन काम लेते हैं, जिनको करके अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।